فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد میں ڈیزل سمگلنگ ریکٹ میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سائبرآباد SOT ٹیم نے ڈیزل سمگلنگ ریکٹ کا پردہ فاش کیا اور اس میں ملوث 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ٹولی کرناٹک سے ڈیزل خرید کر شہر کی بڑی کمپنیوں کو غیر قانونی طور پر سپلائی کیا کرتی تھی۔ DCP SOT M سرینیواس کے مطابق کرناٹک میں ڈیزل کی قیمت 85.75 روپے ہے، جبکہ تلنگانہ میں 97.75 روپے ہے، اور کرناٹک میں ایندھن اسٹیشن کے مالکان کی مدد سے اس گینگ نے ڈیزل کو خریدا اور تلنگانہ پہنچایا اور 2000 روپے کی قیمت کے درمیان اسے فروخت کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے 4 ڈیزل ٹینکرز کو بھی قبضے میں لے لیا ہے اور 4 ملزمان فرار ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے رچکنڈا میں کمشنریٹ کی حدود میں 24 سے 26 مارچ تک شراب کی دکانیں بند رہیں گی۔ پولیس نے خبردار کیا کہ اگر کسی نے بھی اس رول کی خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ہولی کے موقع پر 24 مارچ کی شام 6 بجے سے 26 مارچ کی صبح 6 بجے کے درمیان شراب کی سبھی دکانیں اور ریسٹورینٹ سے منسلک بارز کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور حکم میں پولیس کے مطابق ہولی کے موقع پر سڑکوں اور عوامی مقامات پر رنگ پھینکنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ 2 پہیہ گاڑیوں اور دیگر گاڑیوں کی گروپوں میں نقل و حرکت، امن و امان میں خلل ڈالنے یا دوسروں کو تکلیف پہنچانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی رچکنڈا کے پولیس کمشنر ترون جوشی نے کہا کہ جو بھی شخص ان احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا جائے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لوک سبھا الیکشن 2024 کے پیش نظر BRS نے تلنگانہ کے 16 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS پارٹی نے لوک سبھا انتخابات 2024 کے لیے اب تک 16 امیدواروں کا اعلان کیا ہے، لیکن پارٹی نے ابھی تک حیدرآباد پارلیمانی حلقے سے واحد امیدوار کا اعلان نہیں کیا۔ BRS نے آئندہ لوک سبھا انتخابات 2024 کے لیے 17 میں سے 16 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ BRS نے عادل آباد سے اترم سکو بھونگیر سے کرشنا ریڈی، چیولہ سے کاسانی دانیشور مدیراج، کریم نگر سے ونود کمار، کھمم سے ناما ناگیشور راؤ، محبوب آباد سے کویتا کو میدان میں اتارا ہے۔ اس کے علاوہ محبوب نگر سے مانے سرینیواس ریڈی، ملکاج گیری سے راگیڈی لکشما ریڈی، میدک سے P وینکٹ رامی ریڈی، ناگر کرنول سے RS پروین کمار، نظام آباد سے باجی ریڈی گووردھن، نلگنڈا سے K کشور ریڈی، پیڈاپلی سے کوپلا ایشور، سکندرآباد سے T پدمراؤ گوڑ، ورنگل اور ظہیر آباد سے ڈاکٹر کڑیام کاویا کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ فون ٹیپنگ کیس میں حیدرآباد پولیس کی بڑی کارروائی، تلنگانہ میں 2 افسران کو گرفتار کر لیا گیا۔ فون ٹیپنگ کے معاملے میں حیدرآباد پولیس نے بڑی کارروائی کی ہے۔ ہفتے کی رات 2 سینئر پولیس افسران کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں ایڈیشنل DCP تروپتنا اور ایڈیشنل SP N بھجنگا راؤ شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ N بھجنگا تلنگانہ میں BRS حکومت کے دوران CM سیکورٹی سیل میں تعینات کیے گئے تھے۔ الزام ہے کہ BRS کے دور میں اپوزیشن لیڈروں کے فون ٹیپنگ کیے گئے ہیں تاکہ ان پر سخت نگرانی کی جا سکے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ افسران راؤ کو رپورٹ کیا کرتے تھے اور راؤ کو حیدرآباد پولیس نے پہلے ہی مختلف الیکٹرانک گیجٹ سے انٹیلیجنس معلومات کو مٹانے کے ساتھ ساتھ پچھلی BRS حکومت کے دوران مبینہ فون ٹیپنگ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ تلنگانہ میں ہونے والی شادی میں انوکھی اپیل، دعوت نامہ پر لکھا گیا کہ تحفہ نہ لائیں لیکن PM نریندر مودی کو ووٹ ضرور دیں۔ تلنگانہ کے حیدرآباد شہر کے سنگا ریڈی ضلع میں ایک انوکھا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایک دولہے کے والد نے اپنے بیٹے کی شادی میں مہمانوں کو مدعو کرتے ہوئے انوکھی فرمائش کی ہے۔ انہوں نے دعوتی کارڈ میں شادی کے مہمانوں سے درخواست کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ شادی کی تقریب میں کسی بھی قسم کا تحفہ نہ لائیں، بلکہ تحفے کے بدلے میں آئندہ لوک سبھا انتخابات میں ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی
को वोट दें। दावती कार्ड पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के नीचे ये छपा हुआ है कि नरेंद्र मोदी को वोट देना आपका बेहतरीन तोहफा होगा। तेलंगाना में ये अनोखी शादी 4 अप्रैल को पतनचेरू में होगी। नंदीकांति नरसिम्हलू और उनकी बीवी नंदीकांति निर्मला, जो कि संगारेड्डी जिला के रहने वाले हैं, अपने इकलौते बेटे की शादी का जश्न मना रहे हैं। उनके बेटे साई कुमार की माहिमा रानी से शादी होने जा रही है। ताहम लड़के के वालिद की जानिब से पीएम नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील ने इस शादी को टॉक ऑफ द टाउन में तब्दील कर दिया है। प्रियंका गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर हुकूमत को घेरे में लिया और पूछा कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के लोगों को इसका हिसाब देंगे। लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस मुल्क में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले पर मोदी हुकूमत को घेरने की मुसलसिल कोशिशें कर रही है। अब प्रियंका गांधी ने उन पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के अवाम को इस लूट मार का हिसाब देंगे। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि 38 कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए से बीजेपी को 2004 करोड़ रुपए का अतिया दिया है और इसके बदले में उन्हें बीजेपी की मरकजी और रियासती हुकूमतों से 3.8 लाख करोड़ रुपए के मुआहदे और प्रोजेक्ट्स मिल गए। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि 41 कॉर्पोरेट ग्रुप्स पर ईडी, सीबीआई और आईटी ने छापे मारे। इससे बचने के लिए उन ग्रुप्स ने बीजेपी को 2592 करोड़ रुपए का अतिया दिया। उन्होंने मजीद लिखा कि 16 शेल कंपनियों ने बीजेपी को 419 करोड़ रुपए का अतिया दिया। इनमें वो कंपनियां भी शामिल है जिन्होंने अपने कुल सरमाए से कई गुना अतिया किया था। प्रियंका गांधी ने मजीद लिखा कि मुल्क की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी हुकूमत बदउनवानी को कानूनी जवाब देकर तमाम एजेंसियों और मुल्क के पूरे निजाम को भत्ताखोरी के रैकेट में तब्दील कर दे। क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के अवाम को इस लूट मार का हिसाब देंगे? बहुजन समाज पार्टी ने यूपी की 16 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। लोकसभा इंतखाबात के लिए बहुजन समाज पार्टी ने इस इतवार को अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने इस फहरिस्त में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस फहरिस्त में मगरबी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी करदा इस फहरिस्त के मुताबिक सहारनपुर से माजिद अली, किराना से श्रीपाल सिंह, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह, नगीना एसी से सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जीशान खान को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने संभल से शौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ से देवव्रत त्यागी और बागपत से प्रवीण बंसल को टिकट दिया है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नजर बीजेपी अपनी मीटिंग के बाद आज 4 रियासतों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी लोकसभा इंतखाबात के हवाले से कई रियासतों में उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर रही है। इस हवाले से मरकजी इलेक्शन कमेटी की एक बड़ी मीटिंग बीजेपी हेडक्वार्टर में की गई, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा और कमेटी के दीगर अराकीन ने शिरकत फरमाई। बताया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और राजस्थान की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में कई नामों को मंजूरी भी दी गई, जिसके बाद बीजेपी आज अपनी चौथी फहरिस्त जारी कर सकती है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। वीरप्पन की बेटी तमिलनाडु के कृष्णागिरी से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगी। मखतूल चंदन स्मगलर और डाकू वीरप्पन की बेटी विद्या रानी ने इस हफ्ते के दिन कहा कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात तमिलनाडु के कृष्णागिरी हलके से लड़ेंगी। आपको बता दें कि उन्होंने चंद दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। विद्या रानी ने एक बयान में कहा कि वो तामलार कची के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी। आपको बता दें कि बदनाम जमाना डाकू वीरप्पन साल 2004 में तमिलनाडु पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के साथ एक मुकाबले के दौरान मारा गया था। लिहाजा उन्होंने कहा कि उनके वालिद आवाम की खिदमत करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया था वो मुनासिब नहीं था। लेकिन मैं सियासत में आवाम की खिदमत के लिए आई हूँ। विद्या रानी पेशे के एतबार से वकील है और वो एक कारकुन भी है और कबाइलियों और दलितों की बहबूद के लिए वो काम किया करती है।
सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के फैसले को उन्होंने चैलेंज किया। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है और साथ ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। बता दें कि इस जुमा को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। इसी के साथ ही अब हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में उनकी जानिब से यह दलील की गई है कि ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड ऑर्डर दोनों ही गैर कानूनी है। ऐसी सूरत हाल में ईडी की हिरासत से फौरी रिहाई के वो मुस्तहिक हैं। बता दें कि केजरीवाल ने हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस से इस इतवार तक फौरी समाअत का मुतालबा किया। साथ ही आपको बता दिया जाए कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 घंटे की पूछगछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें जुमा 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया। इंडोनेशिया के शहर एंडे से 85 किलोमीटर जुनूब मशरिक में 5.7 शिद्दत का जलजला रोनुमा हुआ। इंडोनेशिया के एंडे से 85 किलोमीटर जुनूब मशरिक में इस इतवार को 5.7 शिद्दत का जलजला आया और ये मालूमात अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने दी है। आपको बता दें कि इस जलजले का मरकज इब्तिदाई तौर पर 9.44 डिग्री जुनूबी अर्ज बलद और 122.15 डिग्री मशरिकी तोले बलद में 39.5 किलोमीटर की गहराई में तय किया गया। पुतिन ने दावा किया कि मॉस्को हमले में मुलविस 4 हमलावर पकड़े गए। इस्लामिक स्टेट के एक धड़े ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। रूस के सदर पुतिन ने कहा कि मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल पर हमला करने वाले 4 मसलह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि दारुल हुकूमत मॉस्को के नवाह में कॉन्सर्ट हॉल में इस जुमा की रात फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें कम अज कम 133 अफराद की हिलाकत की तस्दीक की गई। साथ ही 140 अफराद इस हमले में जख्मी हुए। रूसी हकाम का कहना है कि मजमूई तौर पर 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 मसला अफराद को यूक्रेन से फरार होते हुए पकड़ा गया। रूसी वजीर खारिजा ने इसे दहशतगर्दाना हमला करार दिया और यूक्रेन ने इस हमले में मुलविस होने की तरदीद की है। ताहम दौलत इस्लामिया के एक धड़े ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। बीबीसी की रूसी सर्विस के एक एडिटर ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में रूस पर यह सबसे बड़ा हमला है। चीन ने एक बार फिर से मुतनाज़ा पानियों में फिलिपीन की कश्ती को अपना निशाना बनाया। मुतनाज़ा जुनूबी बहिराए चीन के साहिल के करीब ताज़ा तरीन तसादम में 2 चीनी साहिली मुहाफिज जहाजों ने इस हफ्ते के रोज फिलिपीन की सप्लाई करने वाली एक कश्ती पर पानी की तोपें चलाई, जिससे कश्ती को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन फौरी तौर पर ये वाज़ेह नहीं हुआ कि फिलिपीन कश्ती के अमले का कोई रुकन इस हमले में जख्मी हुआ या नहीं, या चीनी कोस्ट गार्ड की जानिब से निशाना बनने वाली कश्ती अपनी मंजिल पर पहुंची या नहीं। फिलिपीन कोस्ट गार्ड के तर्जुमान तारीला ने कहा कि चीनी फौज बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है, जिसका मकसद समंदर में तनाज़ियात को रोकना है। फिलिपीनी फौज की तरफ से जारी की गई एक वीडियो में दिखाया गया है कि 2 चीनी कोस्ट गार्ड जहाज लकड़ी की कश्ती पर भारी पानी की तोप से हमला कर रहे हैं। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने सिंगापुर में इसराइल फलस्तीन मसले पर बातचीत की। साथ ही 2 मुल्की हल को एक बेहतरीन ऑप्शन करार दिया। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने अपने दौरा सिंगापुर के दौरान इसराइल फलस्तीन तनाज़े को हल करने के लिए 2 रियासती हल की वकालत की है। उन्होंने इस हफ्ते को इस मामले पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया। उन्होंने मजीद कहा कि इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश करने की कोशिशें की जा रही है। जयशंकर ने ताहम इन कोशिशों की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में अवामी सतह पर बात नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुस्तान कुछ ममालिक की कोशिशों की बहुत हिमायत करता है, जो कि मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए अभी काम कर रहे हैं। गजा की सूरत हाल पर ईरानी वजीर खारिजा और हमास रहनुमा के दरमियान फोन पर बातचीत की गई। ईरानी वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान और हमास के रहनुमा इस्माइल ने 2 रोज पहले गजा में पेश आने वाले वाकयात पर फोन पर बातचीत की। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस्माइल ने इस जुमा को गजा में होने वाली पेशरफ्त के बारे में तफसील से बताया। इसके अलावा उन्होंने शुमाली गजा में इंसानी सूरत हाल को संगीन करार दिया। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को फौरी तौर पर गजा को इंसानी इमदाद फराहम करने की जरूरत है। इसके अलावा साहिली इलाकों में इसराइल की वजह से पैदा होने वाली भूख से निमटने के लिए एक मुनासिब पॉलिसी तैयार करनी होगी। हमास के रहनुमा ने जंग बंदी तक पहुंचने और कैदियों के तबादले के लिए हमास की शराइत के बारे में तफसील से बताया। उन्होंने कहा कि ये फलस्तीनियों के जायज मुतालिबात पर मुबनी है। उन्होंने कहा कि इसराइल इस अमल में रुकावटें पैदा कर रहा है। यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बंगाली 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे. इसी के साथ केबिन हेडलाइंस इख्तिताम को पहुँचती हैं. अल्लाह हाफिज़.